हेलो एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पियर। पियर आर इंटरमीडिएट सपोर्ट फॉर सुपरस्ट्रक्चर for multi-span bridge. These are intended to transmit the load from the superstructure to the bridge foundation. A pier essentially consists of a column or shaft and foundation. When this is constructed on a dry riverbed, it is made up of these parts alone. Generally, the type of the pier to be adopted depend upon the superstructure. At certain place, the type of pier is decided by the soil condition and construction procedure. Pier should be capable of taking the lateral and longitudinal load, including the vertical load. The height of pier is decided by the alignment of the road or railway and highest flood level. The top of the pier is generally kept 1 to 1.5 meter above the highest flood level to prevent the bridge girder arches and other bottom from the floating matter. तो यहाँ पे पियर की बात हो रही है। पियर जो है जैसे ये जो ब्रिज है, तो आखिरी जो सिरे हैं उनको हमने क्या बोला है? एबेटमेंट बोला है। आखिरी 2 कॉलम हैं उनको हमने एबेटमेंट बोला है। बीच के जितने भी कॉलम हैं उनको हमने बोला है पियर। तो पियर का काम क्या रहता है? ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है उससे जो लोड आ रहा है उसको लेके नीचे मिट्टी में ट्रांसफ़र करना। और पियर की हाइट कितनी रहेगी ये डिपेंड करेगा कि हाईएस्ट फ्लड लेवल कितना है, और पियर कौन सी तरह का बनेगा ये डिपेंड करेगा कि सुपर स्ट्रक्चर किस तरह का बन रहा है, या फिर और मिट्टी किस तरह की है, उस पर भी जो है पियर कौन सा बनाना है ये डिपेंड करेगा। इसके टाइप्स हम पढ़ते हैं। पहला एबटमेंट पियर, डम्बल पियर, सॉलिड पियर, कॉलम पियर, ट्रेसल पियर, सिलेंडर पियर और पाइल पियर। पहला हम देखते हैं एबटमेंट पियर। Abutment pier in an arch bridge, it is not necessary to design intermediate pier to resist horizontal thrust of arches, because the thrust of two half arches on each side of the pier act in the opposite direction and counteract their effect. But if the bridge is very long, then it is desired to provide some intermediate pier of heavy section so that they can bear the horizontal thrust if required. Generally, in practice, every fourth or fifth pier is provided for taking the horizontal thrust during the construction. These piers, which are designed for horizontal thrust, are known as the abutment pier. तो जब भी हम ऐसा ब्रिज बनाते हैं तो जब भी आर्च ब्रिज हम बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आता है। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? यदि बहुत लंबा ब्रिज यदि बन रहा है तो हमें बीच में भारी पियर देने की आवश्यकता पड़ती है। तो हर चौथा जो पियर जो रहता है उसको हमें भारी बनाना पड़ता है। तो ये जो भारी पियर हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं अबटमेंट पियर।
अगला टाइप का जो पियर है वो है डम्बल पियर। ये प्रोवाइडेड व्हेन द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज हैज ट्विन गर्डर। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं जब भी सुपर स्ट्रक्चर में दो गर्डर हों, ट्विन गर्डर इस तरह से जैसे डायग्राम में दिख रहा है, तब हमें डम्बल पियर देना रहता है। अगला तरह का जो पियर है वो है सॉलिड पियर। इन मैसनरी ब्रिज द शाफ्ट ऑफ द पियर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज शेप्ड लाइक अ वॉल set parallel to the current. This shape is one of the most commonly used for the upper portion of the pier. This type of the pier is known as the solid pier, and they provide excellent resistance against the floating bodies and can be used for any type of the superstructure of the bridge. The maximum top width is 1.2 meter is required in these pier. These pier may be constructed with stone masonry or concrete. ठीक है, सॉलिड पियर जो है स्टोन मैसनरी या कंक्रीट का हम बनाते हैं, और ये क्या सॉलिड रहते हैं, रेनफोर्समेंट नहीं रहता इसमें, और मैसनरी ब्रिज में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला टाइप का पियर है कॉलम पियर। When the beam of the girder of the superstructure of the bridge is very close together, it is impossible to construct a separate pier for each girder. In such case, a small number of columns are designed and a transom or a beam is provided on their top on which all the girder rest. Uh, but this type of arrangement is very useful where water, oil or sewage pipeline are passing over the bridge because they can be laid in the open space. ठीक है, तो जब हम ये उस कॉलम पियर उस कंडीशन में दिया जाता है जब जो सुपर स्ट्रक्चर जो रहता है ब्रिज का उसमें बहुत सारे गर्डर हैं। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 गर्डर हैं। पांचों गर्डर को सपोर्ट करने के लिए हम 5 कॉलम बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉलम बहुत पास पास हो जाएंगे। तो क्या किया है कि 3 कॉलम बनाए हैं, उसके ऊपर एक बीम बनाई है और उस बीम के ऊपर जो है ये पांचों गर्डर को सपोर्ट रखा है। तो इस कंडीशन में जो है कॉलम पियर बनाते हैं। अगला है ट्रेसल पियर। These are mostly constructed on the land sites or on the dry riverbed portion. Now, as there is no fear or of shock by the impact of the floating bodies, these are designed for compressive force due to bridges and the movement caused by the wind. These are designed as frame structure if they carry subway, road or railway. Openings are provided in the trestle for the another carriageway. If these are constructed on the dry bed, the diagonal brace may be provided as shown in the figure.
द ट्रेसल मे बी ऑफ द RCC और द स्टील डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस एंड डिज़ाइन। तो जो ट्रेसल पियर जो है, ट्रेसल पियर जैसे हम ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये उस कंडीशन में बनाया जाता है जब या तो नदी सूखी हो, पानी कभी नहीं आएगा, पूरे साल सूखी रहेगी, या फिर हम शहर में ब्रिज को बना रहे हैं और नीचे जो हमें रोड वगैरह भी देनी है। तो इसमें जो पियर जो है वो फ्रेम के शेप में हम उसको बनाते हैं, फ्रेम के शेप में बनाएंगे और हम स्पेस नीचे देंगे ताकि वहाँ से रोड जा सके, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। और यदि हम उसको रिवर बेड में बना रहे हैं जहाँ पे रिवर बेड हमेशा सूखा रहता है ना, खाई वगैरह है या रिवर बेड है, तो वहाँ पे हम ब्रेसिंग दे देते हैं ताकि लिटरल सपोर्ट मिल सके दोनों पियर को। ओके, नाउ अगला टाइप का जो पियर है वो है सिलेंड्रिकल पियर। These are generally provided on steel cylindrical caisson foundation. Mild steel girder are extended from the foundation and are connected with each other by horizontal and diagonal steel bracing as shown in figure. The concrete is poured around the vertical shield girder in shape of thin cylinder in which the girder acts as reinforcement. The bridge girder are directly laid over these concrete columns. ये हम फिगर में देख रहे हैं, ये बनाई जाती है स्टील केसन फाउंडेशन के लिए, जिसे हम वेल फाउंडेशन भी बोलते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि स्टील सिलेंडर हम लगाते हैं और ये स्टील सिलेंडर के अंदर हम कंक्रीट फिल कर देते हैं और इनके ऊपर जो है ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर के गर्डर रखे रहते हैं और इसमें हम स्टील की ब्रेसिंग देते हैं ताकि कनेक्शन ठीक से बना रहे। अगला टाइप का जो पियर है वो है पाइल पियर। इन शैलो वाटर द पाइल कैन बी यूज टू सपोर्ट द मेन गर्डर of the bridge directly over their caps, but in such cases to give more literal rigidity to the pile, these are braced together as shown in figure. This type of the pier are cheap, very easy to construct, as pile can be driven in the riverbed easily. तो ये लास्ट टाइप का जो टाइप है पियर का, पाइल पियर है। तो रिवर बेड में हम क्या करेंगे, पाइल को हम गाड़ देंगे और उसके पाइल को गाड़ के हम फिर उसमें ब्रेसिंग कर देंगे। ब्रेसिंग का मतलब क्या है कि उसमें कनेक्शन दे दिए, जैसे यहाँ 3 पाइल गाड़ी हैं, तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्शन दे देने के बाद उसके ऊपर जो है हम बियरिंग डाल के गर्डर को सपोर्ट दे देंगे। तो यहाँ पे पियर के टाइप ख़त्म होते हैं। थैंक यू।